मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम भी इसी की एक कड़ी है। एक तौसी लेक्चर है। इस साल दक्कन मुस्लिम लाइब्रेरी अपना 107वां यूम तासीस मना रहा। दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट न सिर्फ एक इदारा है बल्कि तहजीबी और सकाफती मरकज भी है। यहाँ हर साल कई मौके की मुनासिबत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इस इदारे की सदर आबिदा इनामदार साहबा का एक ही मरकजी ख्याल होता है कि असरे हाजिर में नौजवान नस्ल को किस तरह नई जहतों से रोशनास किया जाए। आज भी इसी मकसद के तहत हर साल की तरह अपना मुकाम पैदा करके उन्वान से एक तौसी लेक्चर का एहतमाम किया गया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं फरहान ताबिश से तिलावत की गुजारिश करती हूँ। इब्तिदा होती है तेरे नाम से। जी अस्सलाम वालेकुम मैम और तमाम हाज़रीन किराम। आवाज़ जा रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है, शुरू करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियतन तुस्का मिन ऐनिन आनियह लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीइन ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ वुजूहुन यौमइज़िन नाइमतुन लिसअयिहा राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियतिन ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुन मरफ़ूअतुन व अक्वाबुन मवज़ूअतुन व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ह व ज़राबिय्यु मबसूसह अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त फैन ऑन करो तुम इधर और वो दरवाजा बंद करो। फरहान, आपकी तिलावत हो गई? हाँ, उनका शायद इंटरनेट नेटवर्क उनका प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम। सदक़ल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह फरहान ताबिश। आगे हम जी जी जज़ाकल्लाह फरहान ताबिश। मैं अब दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की मेंबर नफीसा मैडम से गुजारिश करती हूँ कि सामाईन की खिदमत में इस्तकबाल पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डालें। नफीसा मैडम। कैन यू हियर मी? आप सुनाई दे रहा है ना? जी जी सुनाई दे रहा है। मैम सिर्फ आपका स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिए। जी yes. Okay. On behalf of the managing committee, staff and members of DMI, I would like to thank Allah Azza wa Jal, with whose grace and blessings DMI, that is Deccan Muslim Institute, has successfully completed 107 years. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this occasion, on behalf of the Deccan Muslim Institute, I feel greatly honored to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Samir Ahmed Siddiqui, the founder of Alif's Academy, renowned IAS coach, a motivational and inspirational speaker. A hearty and sisterly welcome to our ever enthusiastic, always on war footing, President, Mrs. Abida Inamdar,
members and staff of DMI, and all our dear attendants who have joined us through Google Meet. To talk about Deccan Muslim Institute, established on 30th October 1915 as a reading room, DMI is a registered charitable trust. To date, it is running a well-managed and well-equipped A-grade public library with a free reading room. Students appearing for MPSC, UPSC and NEET exams have greatly benefited with the study material and an educational environment. Keeping in mind the growth of youths and importance of ever-advancing technology, the Institute runs a central government-recognized one-year diploma computer application and multilingual DTP course. More than 3,000 students have benefited to acquire satisfactory placements up to date. We have to our credit Urdu Research Center affiliated to Savitribai Phule Pune University. Next, a foreign language cell conducting one-year diploma in Arabic and Persian language. The need of the hour today is financial assistance for our upcoming students. The Institute, through its Scholarship Information Cell, it not only provides information about various central, state and private trust scholarships, but our appointed staff, it also assists the students in uploading documents and online form filling, thus helping the students to successfully apply and submit scholarship forms. Up to date, more than 30,000 students have benefited from this particular activity of ours. The Institute not only grooms the approaching students to acquire a status in society, but it also assists them to have a perfect life partner through the Marriage Information Cell. We provide information of prospective unmarried boys and girls to aspiring candidates. Another feather in our cap is the Medical Information Cell, which provides information to needy people about various hospitals, government schemes, etc., disease-wise. To conclude about the Institute, with a futuristic look, has been appreciated with many awards to its credit. The Adarsh Library Award, then the Best Global Representation Award, Service for the Nation Award from Pune Festival Committee, and Pakke Punekar Award from Punya Bhushan Foundation. To sum up, I quote translation of Ayat 160 of Surah Al-An'am, where Allah Azza wa Jal decrees, whoever brings one good deed, I shall have 10 times the like of it to his credit. On behalf of all the members, I pray to Allah Azza wa Jal to add more feathers to our cap with his mercy and blessings. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शुक्रिया नफीसा मैडम. Yes, completed. अब मैं मुख्तसरन आज के मेहमान खुसूसी समीर सिद्दीकी साहब का तारुफ आपके सामने पेश करूंगी. मोहतरम समीर सिद्दीकी एक नामवर IAS IPS कोच हैं. आप एक मौर्रिख भी हैं और माहिर जोग्राफिया भी हैं. आपकी अब तक 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं. आपके कई पेपर्स न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल जर्नल्स में भी शाये हो चुके. आप अलिफ एकेडमी के फाउंडर हैं. आपने तकरीबन IAS की कोचिंग के लिए 100 से ज़ायद लेक्चर दे चुके हैं. न सिर्फ लेक्चर बल्कि उसका तजिया भी करते हैं. आपके कई तहकीकी पेपर्स जो आलमी रसायल में पब्लिश हो चुके हैं, उससे ये बात साबित होती है कि न सिर्फ आप हिंदुस्तान बल्कि आलमी तौर पर भी मशहूर व मकबूल सहाफ़ी हैं. मोहतरम समीर सिद्दीकी न सिर्फ IAS की कोचिंग करते हैं बल्कि आप गूगल से यूट्यूब तक और यूट्यूब से फेसबुक तक छाए हुए हैं. आपके तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं और हजारों व्यूवर्स हैं. अगर हमारे अपने सामाईन और नाजरीन यूट्यूब पर जाएं तो आपका एक से एक आला खिताब हमको सुनने को मिलेगा. खास तौर पर
मुगल शहंशाह बाबर का सबक आमोज किताब, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, या दुनियावी तालीम में हुजूर अकरम का क्या मुकाम है। ये ऐसे लेक्चर हैं आपको जिसको सुनकर एक झंझोड़ता हुआ दिल हमारे सामने आता है। आपके बेशुमार लेक्चर हैं जिससे ये महसूस होता है कि आप एक हमाजहज शख्सियत हैं और कौम के लिए एक दर्दमंद दिल रखते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए आपने हमारी दावत को कबूल किया। नौजवानों यानी अल्लामा इकबाल के शाहीनों से आज आप खिताब और रहनुमाई फरमाकर हमारी दावत को कबूल फरमाएंगे और हमारे नौजवानों के लिए एक मशअले राह साबित होंगे, क्योंकि इकबाल ने कहा है, नहीं इकबाल नाउम्मीद अपने किश्ते वीरां से, नहीं इकबाल नाउम्मीद अपने किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सर। मोहतरम जनाब IAS IPS कोच, हमारे मेहमान जी वक़ार मोहतरम जनाब समीर सिद्दीकी साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ कि हमारे सामाईन को आप खिताब फरमाएं। ये स्क्रीन शेयरिंग राइट्स हैं इसमें आसिफ भाई? यस सर, बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारे सामने बैठे वक्त के बहुत पढ़े लिखे लोग, और खुशकिस्मती इस बात की है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे पढ़ी लिखी फीमेल्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ा इज्जत का सबब है कि हुमैरा फरहात मैम, उज़मा तस्नीम मैम, नफीसा मैम, नौशाद मैम, और एक जिनके हम सब जिनके काम के दीवाने हैं, ऐसी हमारी आबिदा इनामदार मैम। अल्लाह के हाथ में इज्जत और ज़िल्लत है, लेकिन आज मैं अपने रब के सामने बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक ऐसी इज्जत दी कि आसिफ भाई, डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि एक ऐसा इदारा जो 107 साल पहले कायम किया गया था। अब आप सोचिए कि 107 साल पहले जिन लोगों ने मिलकर इस इदारे को कायम किया होगा वो कितने विजनरी रहे होंगे। जैसा कि उज़मा मैम ने कहा अभी, उन्होंने कहा कि, और नफीसा मैम ने कहा कि इट्स एन इंस्टीट्यूट विथ अ फ्यूचरिस्टिक विजन, यानी रहते वो लोग उस सदी में थे पर देखते अगले 100 साल की थे, और आज वो बहुत एबल हाथों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ पर हैं, आबिदा इनामदार मैम, और बहुत सारे बेहतरीन वो लोग जो इस डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, IAS IPS, फॉरेन लैंग्वेज, इवन शादियों में मदद करता हुआ, मेडिकल नॉलेज देता हुआ ये एक बेहतरीन इदारा है। लेकिन जिस एक काम के लिए मुझे बुलाया गया है, और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये जिम्मेदारी आज दी गई है कि अपना मकाम पैदा कर इस टॉपिक पर बोलते बोलते मुझे अगले 100 साल दिखाना है, और ये दिखाकर ये दिखाना है कि मकाम पैदा कर इसके माने कितने चेंज हुए हैं, किस कदर चीजें बदली हैं। तो 107 साल पहले जब ये इंस्टीट्यूट बना होगा तो इसके फाउंडर्स ने आपस में सोचा होगा कि कभी आज़ादी मिलेगी, और आज़ादी के बाद फिर जो नस्लें आएंगी वो नस्लें अपने आप को उस जमाने के एतबार से कैसे संवारेंगी। आज 31 अक्टूबर 2022 को हमारे सामने अब ये सवाल है कि अगले 20 सालों में या 30 सालों में ऐसा क्या होने वाला है, और हमारी नस्लें क्या करें जो अपने आप को संवार पाए। तो इसका पहला एग्जाम्पल जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि अगले 10 और 20 साल में क्या बदलने वाला है, उसका पहला इंतजाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम में से कोई भी किसी से मिलने नहीं आएगा, वो हजारों किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगा, वो अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे एक दूसरे से ऐसे बातें करेगा जैसे वो आजू बाजू बैठे हुए हैं। और अब तो 5G भी रोल आउट हो गया है, तो अगली तकरीर जब 108वीं बरस की होगी तो जो उसके मुख्य अतिथि आएंगे वो प्रोजेक्टर से लाइब्रेरी में खड़े हो जाएंगे, यानी यहाँ से वो बोलेंगे लेकिन आपको वहां खड़े हुए वो दिखेंगे ऐसे जैसे कि वो आपके सामने रूबरू है। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होने लगी है। सबसे पहले हम जो भी पढ़कर एज एन इंसान कर सकते थे उसके लिए दुनिया में एक मशीन आ गई है।
एक सवाल है जिसका जवाब बदल गया है। पहले एक सवाल ये हुआ करता था कि आपको घर में सबसे अच्छा कौन जानता है, तो बच्चे हाथ उठा के कहते कि, खासकर लड़के कहते हाथ उठाकर कि अम्मी जानती है, और बच्चियां हाथ उठाकर कहती है कि नहीं नहीं हमारे वालिद हमको ज्यादा अच्छा जानते हैं। और सबसे उसका सही जवाब ये होता कि भाई बहन को और बहन भाई को, ये एक दूसरे को जाना करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उखड़ कर, दुनिया से दिल टूट कर अपने कमरे में दाखिल होता, तो ये बात बिना बताए सबसे पहले मेरे छोटे भाई को पता चल जाती, और जब वो दाखिल होता तो मुझे पता चल जाती कि नहीं यार इसके साथ कुछ हुआ है। और अब जब ये एक्सप्लेनेशन देगा हमारे माँ बाप को, तो मुझे इसके तरफ से थोड़ा सा झूठ बोलकर इसकी जान बचानी है। हम एक दूसरे को इस कदर समझा करते थे, लेकिन अब जो नस्लें आ रही हैं वो किसी और मिट्टी से नहीं बनी है, लेकिन वो किसी और माहौल में है। एक सवाल ये आता है कि आज आपको घर में सबसे अच्छा कौन जानता है, तो इसका जवाब है कि मुझे ना वालिदा, ना वालिद, ना मेरे भाई बहन, मुझे घर में सबसे अच्छा यूट्यूब जानता है। तो पूछा कि यूट्यूब कैसे जानता है, तो कहा कि वो मेरे मूड को भाप कर उससे रिलेटेड और संबंधित वीडियोस को सजेस्ट करता है, और मैं 4-5 वीडियोस जो वो मुझे सवेरे दिखाता है, उसमें से मैं जिस मूड में रहती हूँ या रहता हूँ वो सिलेक्ट कर लूं, तो नीचे फिर उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस की झड़ी लगा देता है। आज मेरी दोस्ती बरकरार रखने में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है। कहा कैसे है, कहा वो दोस्त जिनसे मैं कॉलेज में बात भी नहीं कर पाया था, वो दोस्त जो दूर से देखकर मुझे मुस्कुराते भी नहीं थे, उनका बर्थडे मुझे याद दिलाता है, और मुझे कुछ करना भी नहीं होता है, सिर्फ एक बटन दबाने पर मेरी तरफ से एक वर्चुअल गुलदस्ता देकर एक अच्छे अशार के साथ उनको मुबारकबाद दे देता है। और वो भी दोस्त ये गदगद हो जाता है कि यार ये आदमी जिसने मुझसे दुनिया में कभी बात नहीं की, वो आज मेरा बर्थडे याद रखे हुए है। इस वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले की जो नस्लें थी उनका कंपटीशन अपने क्लासमेट से था, अपने कॉलेज वालों से था, अपनी यूनिवर्सिटी वालों से था, लेकिन आपका कंपटीशन आने वाली मशीनों से है, आने वाले एल्गोरिदम से है, आने वाले इंटरनेट के वेबसाइट से है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आज तक अल्लाह गवाह है, कोई बात हम में से कोई झूठ बोलने वाला भी नहीं है, तो अल्लाह ने हाजिर नाजिर जानकर हम बताते हैं कि हमने एग्जाम कैसे पास किया था। हमारी टीचरों ने हमें बहुत सारी किताबें दे दी थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें से पढ़ना है पढ़ लो, समझना है समझ लो, या रटना है रट लो। बस एग्जाम में जो सवाल आए उस सवाल के हिसाब से उल्टी कराना, और जितनी अच्छी तुम उल्टी करोगे उतने ज्यादा नंबर तुमको मिल जाएंगे। हम भी यही करते रहे साहब। हमने बहुत सारी किताबें ली, जितना हम उसको रट सकते थे। इवन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रिक्शे और ऑटो में बैठकर जितना पढ़ सकते थे हम पढ़ चुके, और वहां जाकर अगर उसमें से एक सवाल आ गया, और हम लोग ये कहा करते थे कि किसी वली का सदका मिल गया कि वही सवाल आ गया, तो हम खूब अच्छा लिखाते, और अगर किसी वली का ज्यादा सदका मिल जाता, सारे सवाल उसमें से आ जाते, तो हम यूनिवर्सिटी टॉप भी कर जाते थे। लेकिन अब इस दौर में आपको पहला झटका मैं ये देने वाला हूं कि विकिपीडिया नाम की एक कंपनी है जिसमें 1 घंटे में 67,000 पेजेस अपडेट होते हैं। 67,000 पेजेस हर घंटे विकिपीडिया पर अपडेट होते हैं बच्चों। आप अपनी जिंदगी में शायद 67,000 पन्ने नहीं पढ़ेंगे जितना 1 घंटे में विकिपीडिया पे अपडेट होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसी 3,500 रुपए की मशीनें आती हैं जो उन पेजेस को पढ़कर सुनाती हैं। हम उनको अमेज़न की अलेक्सा कहते हैं, या हम उनको एप्पल की सीरी कहते हैं। आप बैठे बैठे उस 3,500 की मशीन से सिर्फ सवाल पूछिए, अलेक्सा मुझे ये बताओ डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट कब कायम हुआ था। वो स्कैन करती है, विकिपीडिया से डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट का पेपर निकालती है और उसको पढ़कर सुनाती है। सर ये 107 साल पहले 30 अक्टूबर 2022, सर ये कल की ही दिन इस्टेब्लिश हुआ था, आप कहें तो आपकी तरफ से एक मुबारकबाद का मैसेज दे दिया जाए। ये बातें मशीनें हमसे 1000 गुना ताकतवर हो गई है। आप उस अलेक्सा से गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उस अलेक्सा से कस्तूरबा गांधी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं जिनके बारे में सिलेबस में इतना नहीं है। आप उस अलेक्सा से बीबी फातिमा शेख के बारे में पूछ सकते हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा इस मुस्लिम इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने में। तो फिर आप और मैं पढ़कर क्या कर रहे हैं?
हम विकिपीडिया से मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम अलेक्सा जैसे जवाब कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक मशीन दिखाना चाहता हूँ, और अगर आसिफ भाई मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ तो एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कैसे आने वाले जमाने में मशीनें आपस में बात भी करेंगी और कैसे आने वाले जमाने में मशीनें वो तकरीरें भी करेंगी। बहुत मुमकिन है कि जब 200वां बरस आए हमारे डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट का, तो उस दिन चीफ गेस्ट की तरह हम विकिपीडिया को ही बुलाते हैं, क्योंकि उस दिन उससे ज्यादा कोई जानता ना हो। तो मैं आपको एक छोटा सा नजारा दिखाना चाहता हूँ। कैन आई शेयर माय स्क्रीन आसिफ? Yes, sir, please. Yes, sir, please. ओके, जज़ाकल्लाह। इधर आमचे ना DMI. तो मेरी स्क्रीन आप देख सकते हैं, मैं आपको गूगल के AI असिस्टेंट को दिखा रहा हूँ, और ये गूगल का AI असिस्टेंट जो है ये फ्री है, और गूगल के हमारे ये जो सामने खड़े हैं वो आपको बहुत अच्छी चीज बताएंगे। इंडियन है ये, हम सब जानते हैं, इनका नाम लेना भी फक्र की बात है, लेकिन ये बताते हैं कि एक फ्री असिस्टेंट गूगल ला रहा है जो हम सबके ब्राउजर में होगा। हमें सिर्फ उसको ये बताना होगा कि मुझे बाल कटवाना है या गाड़ी बनवानी है या एडमिशन का एक अपॉइंटमेंट करना है, तो बस तुम ये कर दो कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो। तो अब देखिए मशीन फोन लगा रही है एक सलून में बाल कटवाने का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, लेकिन वहां से जो मशीन फोन उठा रही है वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेती है, और ये दोनों मशीनें आपस में बात करके कैसे आपके अपॉइंटमेंट को सेट करती है, आप इसको गहराई से और ध्यान से देखिए। I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? देखिए दो मशीनें आपस में बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही हैं, ठीक उसी तरह जो सेक्रेटरी का जॉब करने वाले कभी किया करते थे। सेक्रेटरी का जॉब करने वाले भी एक डिसेंट सैलरी मांगेंगे, लेकिन ये मशीनें सिर्फ बिजली का बिल मांगती हैं। तो आने वाले जमाने में जहां पैसा बचाना एक बहुत बड़ी चीज होगी, इंसानों को एम्प्लॉयमेंट ना देते हुए इन मशीनों को एम्प्लॉयमेंट क्यों ना दे दिया जाए, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर सारे एम्प्लॉयमेंट इन मशीनों को चला जाएगा, जिनका इंग्लिश का एक्सेंट भी हमसे अच्छा है, जिनका ग्रामर भी हमसे करेक्ट है, जो बात भी बड़े कॉन्फिडेंट टोन में करती हैं कि फोन लगाने वाले को भी लगे कि यार इन्होंने जिसको हायर करके रखा है वो बड़ी कॉन्फिडेंट लेडी है। अगर इनको इतने एडवांटेजेस है तो हम पढ़कर जब निकलेंगे तो हमें नौकरी कौन देगा। मैं आपके स्क्रीन पे एक चीज और दिखाता हूं, आने वाले जमाने में रोबोट्स जो हैं वो काम करेंगे जो इंसानों में चैंपियन नहीं कर सकते। तो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन समुराई वॉरियर हैं जापान के, और इनका मुकाबला एक कार बनाने वाली रोबोट के आर्म्स। रोबोट क्या करते हैं, कारों में डोर्स को वेल्डिंग करते हैं, इंजन को फिट करते हैं, सारा काम रोबोट्स करते हैं। तो एक रोबोट के आर्म को सेंसर लगाकर लाया गया, और ये सेंसर क्या करते हैं, ये दुनिया से डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके फीड करके वो डिसीजन लेते हैं। मैंने क्या कहा, आपने ध्यान से नहीं सुना, मशीनें डिसीजन लेती हैं, मशीनें डेटा को एनालाइज करती हैं, मशीनें डेटा सेट को पढ़ती हैं और समझती हैं। और सोचिए एज एन इंसान हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रट रहे हैं, सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री लेकर अपने घर जाकर छुटकारा पाना चाहते हैं। जबकि यहां देखिए आप 5 बार समुराई वॉरियर को सेंसर लगाए जा रहे हैं,
और इस सेंसर से निकलने वाले डेटा को मशीन एनालाइज करके ना सिर्फ इस चैंपियन को कॉपी करके दिखाएगी, बल्कि इस चैंपियन से थोड़ा आगे निकल कर दिखाएगी। तो अब आप देखिए स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, देखिए सेंसर लगने के बाद जैसा वॉरियर कर रहे हैं ठीक वैसा ही मशीन कर रही है। मशीन इनके डेटा को जमा करके, जैसे ये तलवार रख रहे हैं, मशीन भी बिल्कुल तलवार रखने की वैसी ही एक्टिंग कर रही है। और अब पहला राउंड होता है जिसमें नीचे से एक डायगोनल कट लगाना है। इसको गहराई से देखिए, इस डायगोनल कट को। ये देखिए समुराय वॉरियर है, इंसान है, इन्होंने एक परफेक्ट डायगोनल कट लगाया। लेकिन अब मशीन की बारी, मशीन ने इस डेटा को लिया, एनालाइज किया और अपना डिसीजन खुद लिया, सीख लिया उसने। और अब वो देखिए कैसे डायगोनल कट लगाएगी। ठीक है, अब देखिए राउंड 2 में क्या होता है साहब। राउंड 2 में ये होता है कि एक फ्लावर को, एक फूल को नीचे से ऊपर की तरफ काटना है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। चैंपियन ने परफेक्शन के साथ करके दिखाया। अब मशीन की बारी, मशीन भी नीचे से एक परफेक्ट कट लगाती है, डेटा को एनालाइज करती है और एकदम सटीक काट के दिखाती है। अब राउंड 3 है, यहां से मशीन इंसानों से आगे निकलने लगेगी। वॉरियर ने 5 बार, चैंपियन ने एक संतरा मंगाया और संतरे को बीच से ऐसे काटा कि जूस की एक एक बूंद छलक गई। लेकिन मशीन का कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया है, उसने 5 संतरों को मंगाया और ऐसे काटा कि 5 में से जूस की झड़ी लग गई। उसके बाद मशीन ने कहा कि मुझे एक छोटी सी फल्ली दे दीजिए, मुझे बीन्स दे दीजिए, पीस दे दीजिए, जिसे हम चना कहते हैं। और अब आप देखना स्लो मोशन कैमरे में जब ये काटेगी तो एक एक चने को उसने बीच से बराबर काट दिया। और राउंड जब आखिरी आता है तो इंसान हार जाता है। क्यों? मशीन इतना सीख चुकी है जो इंसान के बस की बात नहीं। 1000 कट लगाने हैं, 1000 कट। इंसान 241 कट के बाद थक जाता है, लेकिन मशीन 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, जितने आप कट कहेंगे मशीन उतने कट लगाने को तैयार है। इस भविष्य की तरफ हमारे नौजवानों को जाना है। इस भविष्य की तैयारी हमें करनी है, जो सिर्फ एग्जाम पढ़कर, जो सिर्फ किताबों को रट कर, सिर्फ किताबों के कुछ आंसर्स को एग्जामिनेशन पेपर में लिख कर आने से नहीं होगा बच्चों। हमें बहुत गहरी और अलग किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें एलेक्सा, विकिपीडिया और इन रोबोटिक्स आर्म को हराना पड़ेगा। हमें ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, काबिलियत के उस मैयार पे जाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट सिर्फ हमें ले जाएं और वो चल कर कहें कि नहीं, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई दुनिया में मशीन वाला नहीं हो सकता, तुम मेरा साथ दो, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो। वरना नीचे के जो छोटे छोटे जॉब्स हैं और ऊपर के जो बड़े बड़े जॉब्स हैं, वो धीरे धीरे सारे मशीनों के हाथ में, अल्गोरिदम्स के हाथ में जा रहे हैं। आप सोचिए, आज इस गूगल मीट पर जब हम बैठे हैं तो कितने लोगों को रोजी रोटी में उनकी आमदनी कम हो गई। नफीसा मैम और हुमैरा मैम जो हैं, ये अपने घर में बैठी है, इन्होंने टैक्सी नहीं ली। और मैं दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में, ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मैंने प्लेन का टिकट नहीं खरीदा। आप सोचिए कि किस कदर पैसा और सहूलियत इन मशीनों ने पैदा कर दी। मैं आपसे ऐसे मुखातिब हूँ और आप मेरा चेहरा इतना साफ देख सकते हैं कि मैं अगर स्टेज पर बैठता तो पीछे रह रहे कई बच्चे मुझे देख नहीं पाते। हम उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं अब आपको अपनी बात को समेटते हुए, क्योंकि 10 ही मिनट में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए इस युग में, जहां मशीनों का ऐसा बोलबाला है, जो मशीनें इंसानों को हरा रही है और ऐसे वैसे इंसानों को नहीं हरा रही। अभी अभी मैंने सिर्फ दिखाया है आपको कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन को हरा रही है। इतना ही नहीं है, बड़े बड़े कीरत करने वाले आलिम जो है हमारे, उनसे अच्छा कीरत गूगल करके दिखाता है। बड़ी बड़ी बुखारी और मुस्लिम की किताबें लोग नहीं खोल रहे, हदीसों का हवाला गूगल पे ढूंढ रहे। इस दौर में अगर आपको आलिम भी होना है तो यू विल हैव टू बी एन आलिम विथ अ डिफरेंस। और एक जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये है, जो टीचर्स हैं, अगर उन्होंने अपना पढ़ाने का तरीका नहीं बदला तो बहुत जल्दी आने वाली मशीनें उन टीचरों की जगह ले लेंगी, उन्हें बदल देंगी। और ऐसा हो रहा है। हम क्लास में इतना दिल नहीं लगाते जितना दिल से कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं। हम क्लास में एक दूसरे से इतना नहीं मिलते और बात नहीं करते जितना व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे से चिट चैट करते हैं। इस दौर में ऐसे स्टूडेंट चाहिए
जो डेटा को जानते हो नहीं, जो इंफॉर्मेशन को जानते हो नहीं। डेटा और इंफॉर्मेशन को आपसे अच्छा मशीनें जानती है। तो फिर कैसे स्टूडेंट चाहिए? इस दौर में ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो इन डेटा में, इन इंफॉर्मेशन में जान फूंक दे। इन इन डेटा और इंफॉर्मेशन जो किताबों में लिखा हुआ है उसमें ऐसी क्रिएटिविटी मिला दे, उसमें ऐसा इमेजिनेशन और सेंस मिला दे, उसमें ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग मिला दे जो मशीनों के बस का नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। गांधी जी कब पैदा हुए थे? तो वो मशीन तुरंत जवाब देती है कि भाई 2 अक्टूबर 1869 को। कस्तूरबा क्या गांधी जी से बड़ी थी? मशीन कहती है बिल्कुल बड़ी थी, 2-2.25 साल बड़ी थी। पूछा कि क्या फातिमा बाई शेख की मदद महात्मा फुले ने की थी? कहा महात्मा फुले ने भी की थी। और सावित्रीबाई शेख को पहली सावित्रीबाई शेख ने सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने की पहली जगह फातिमा शेख ने अपने घर में दी थी। ये मशीनें हैं बच्चों जो जानती हैं, लेकिन मशीन से अगर एक सवाल पूछो तो वो नहीं जानती। फातिमा बाई शेख कब पैदा हुई थी? उन्होंने पहली बार अपना घर क्लासरूम बनाने के लिए कब दिया? पहली क्लास सावित्रीबाई फुले ने कब ली थी? उस क्लास में कितने बच्चे बैठे थे? सब मशीन को पता है। लेकिन एक बात नहीं पता, जैसे ही उस मशीन से पूछो कि सावित्रीबाई फुले और बीबी फातिमा शेख अगर आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? बस ये एक चीज है जो गूगल पर सर्च नहीं की जा सकती। बस ये एक चीज है जिसका जवाब एलेक्सा और सीरी नहीं दे सकती। इसका जवाब वो ही स्टूडेंट दे सकता है जो बीबी फातिमा शेख, जिनका नाम लेना भी एक इज्जत की बात है, बीबी सावित्रीबाई फुले जिनका नाम लेना से भी हमारी अजमत पड़ती है, उन्हें पढ़ते समय उनमें डूब कर पढ़े। सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर ना करें, उनकी शख्सियत को परखे और अपने पढ़े हुए पर बैठकर सोचे। उनको वहां से किताबों के पन्ने से निकाल कर उनकी तालीमात को आज के जमाने में लगा दे और सामने खड़ा करके सोचे कि यार, अगर ये लोग जिन्होंने डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट कायम किया था, अगर आज वो इस दौर में होते तो कौन सा इंस्टीट्यूट कायम करते। आपको पता है, सिर्फ ये एक सवाल डीएड में पूछ लिया जाता ना कि डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कायम करदा जो लोग थे 2022 में जिंदा होते तो आपके ख्याल में वो कौन सा इंस्टीट्यूट कायम कर रहे होते? तो आधे लोगों को डीएड की डिग्री ही नहीं मिलती। आप समझ रहे हैं? और डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट कब कायम हुआ था, किसने कायम हुआ था, अब इसमें दम ही नहीं रह गया। क्यों? ये बात विकिपीडिया को भी पता है, गूगल को भी पता है, फेसबुक पेज ऑफ डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट को भी पता है। इसलिए आपको फैक्ट्स में इमेजिनेशन मिलानी होगी, क्रिएटिविटी मिलानी होगी। आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, ये बात मिलानी होगी। आपको हर इंफॉर्मेशन के पीछे के एट्रीब्यूट्स को देखना होगा और फिर बैठकर सोचना होगा अपने पढ़े हुए पर कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या यूज है। और अगर यह सवाल आ जाए जो सिर्फ इंसानों के लिए बना है, जो किताब खोल कर भी जवाब नहीं दिया जा सकता, जिसका आंसर इंटरनेट पर भी नहीं ढूंढा जा सकता, तो क्या मैंने ऐसे सवालों की तैयारी की है? क्या मैंने रॉ इंफॉर्मेशन में कंप्लीटनेस लाया है? क्या मैंने उस इंफॉर्मेशन पे इमेजिनेशन को मिलाया है? क्या ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट जो वो मशीन कर रही थी, क्या मैं अपने पढ़े हुए सिलेबस के साथ कभी ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, इंटरप्रिटेशन मिलाता हूं? क्या मैं उसमें अपना लॉजिक और एक्सपीरियंस लाता हूं? क्या मैं उसके अंदर अपने गैसेस और गट फीलिंग को मिलाता हूं? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप पढ़कर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आप पढ़कर पास तो हो जाएंगे, एक अदद डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उस अदद डिग्री लेकर आपके साथ भी वही होगा जो इस देश के करोड़ों नौजवानों, दुनिया के करोड़ों नौजवानों के साथ हो रहा है। और वो क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। पेपर में उनके आंकड़े आते हैं कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। मेरी बात सुनना बहुत गहराई से मेरे बच्चों। डेटा और फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन से ज्यादा विजडम की जरूरत है। और विजडम कब आता है? जब हम अपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर बैठकर सोचते हैं, जब हम उस टॉपिक पे निकलने वाली हर नई किताब को खुश होकर पढ़ते हैं और पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को आज के जमाने में लगा कर देखते हैं, जब हम पीछे की तरफ सोचकर हर डॉट को कनेक्ट करते हैं, तब जाकर ऐसे सवालात का हम जवाब दे सकते हैं जिन सवालात का जवाब मशीनें नहीं दे सकती। आपको लगता है ना, जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
एक नए जमाने में नए कॉन्फिडेंस की जरूरत है मेरे बच्चों। और वो नया कॉन्फिडेंस क्या है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ये पूछ लूं कि पानीपत में पहली लड़ाई क्यों हुई थी, दूसरी लड़ाई क्यों हुई थी, तीसरी लड़ाई क्यों हुई थी, तो मुझे बताया गया कि यहाँ यूपीएससी एमपीएससी के बहुत सारे एस्पायरेंट बैठे हैं जो इस बात का जवाब दे सकते हैं सर कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, क्यों हुई, किसमें हुई, कौन जीता, क्यों जीता, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। पर अगर मैं हाँ बस मैं खत्म करूं। तो अगर मैं यूपीएससी का वो सवाल पूछूं 2018 में आया था, ध्यान से सुनना, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं? इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई थी? इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई थी? ये है वो सवाल कि अगर आपको इंटरनेट भी दे दिया जाए, ये है वो सवाल कि अगर आपको सारी किताबें खोल कर भी दे दी जाए, तब भी आप जो है उसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? आपको एक ऐसे मेंटर, एक ऐसे गाइड, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको उन सर्कमस्टांसेस को पढ़ाए, जो आपको सचमुच कॉन्फिडेंट बनाए, जो आपको सोचने का तरीका समझाए, और जो आपसे ये कहे कि सेंटेंसेस याद मत करो, बल्कि हर सेंटेंस पे एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछो, जो आपको ये समझाए कि सिर्फ आंसर मत ढूंढो, आंसर्स ढूंढो, जो आपको ये समझाए कि अपने जवाब को कांस्टेंट एडजस्ट करो जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात है जो मशीनें करती हैं, उससे अच्छा जो आपको ये करके सुना है वो ये है, जो आपको ये समझाए कि अपने फेलियर से डरो मत, बल्कि उस फेलियर से सीखो। पीए इनामदार साहब की एक बात जो आज से 1 महीना पहले जिस स्टेज पर मैं बैठा था, उसी स्टेज पर प्रमुख अतिथि बनके वो भी बैठे थे। उन्होंने एक बात कही है जो मैं सबके सामने दोहराना चाहता हूं, और वो क्या लीजेंडरी इंसान है जिन्होंने एक स्कूल से शुरू किया और आज सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ी कर दी है। इस दौर के सर सैयद अहमद उन्हें कहा जाता है। उनकी एक बात याद रखना, उन्होंने कही थी स्टेज पे कि एक ऐसे नए सिलेबस की जरूरत है जिसमें 25% ही स्कूल का करिकुलम हो, 75% इंसानियत का करिकुलम हो। ये जो 75% का इंसानियत का करिकुलम है ना, हमारे दिमाग बहुत पढ़े लिखे बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल अनपढ़ रह जा रहे हैं। हमारे डॉक्टरों के जज्बात भी खत्म हो गए, हमारे इंजीनियर वेपन्स बनाने लगे। क्यों? अल्लाह के रसूल को चाहने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों ने पढ़ना छोड़ दिया। कभी ये डॉक्टर बनते, कभी ये इंजीनियर बनते, तो ऐसी मशीनें बनती। ईश्वर से डरने वालों ने डॉक्टर बनना छोड़ दिया। क्यों? उनके दिमाग ने यूनिवर्सिटी से पीएचडी तो कर ली, पर उनका दिल कभी कुरान के कुछ पन्ने नहीं पलट पाया या भगवत गीता की गहराई को नहीं समझ पाया। इसलिए हमारे यहाँ इंसान के रूप में मशीनें घूम रही हैं। तो जब आप बनना तो ऐसे बनना जो सच में इंसान हो, वो इंसान जिसके अशरफुल मखलूकात होने को अल्लाह ने अपने फरिश्तों पे बयान किया था। अपने अंदर इन्वेस्ट करना बच्चों, अपनी पर्सनालिटी को परख कर देखना कि क्या इस टॉपिक को दुनिया में सबसे अच्छा मैं जानता हूं। अगर जवाब है नहीं, तो तब तक पन्ना मत पलटना। पन्ना तभी पलटना जब तक कि वो चीज आप ऐसे ना जान लो जैसे अपने वालिद और वालिदा की हिस्ट्री को जानते हो। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया समीर सिद्दीकी साहब, बेहद शुक्रिया समीर सिद्दीकी साहब। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, दिल के दर्दमंद का तर्जे कलाम और। समीर सिद्दीकी साहब, मैंने आपके लेक्चर्स यूट्यूब पर बहुत सुने, लेकिन आज का आपका ये लेक्चर बेहद मुख्तलिफ था। आपने ये नौजवानों को बता दिया कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा करने के लिए इस बात की जरूरत है अपने मन में डूब कर बाजा सुराहो जिंदगी। बेहद शुक्रिया समीर सिद्दीकी साहब, आपने न सिर्फ हमारे बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी, हम जैसे असातिज़ा के लिए भी बेहद कारआमद बात की। शुक्रिया। अब मैं आज के सदारती कलिमात के लिए सदर दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट लायक सदे एहतराम आबिदा इनामदार साहबा से गुजारिश करती हूँ कि आज के सदारती कलिमात इनायत फरमाए। इस शेर के जरिए मैं आपको दावत देती हूँ। इरादे जिनके तूफान हो तबीयत जिनकी तूफानी, इरादे जिनके तूफान हो तबीयत जिनकी तूफानी,
वो कश्ती को कभी साहिल की तरफ फेरा नहीं करते। खातून आहन मोहतरमा जनाब आबिदा इनामदार साहब। शुक्रिया। आज के मेहमान खुसूसी सिद्दीकी साहब, डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मेरे साथीदारान, तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन डे के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद भी देती हूँ और बेस्ट विशेस तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो इम्तिहानात वो देने वाले हैं उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस मैं उनको देती हूँ। हमारा हर साल ये जो फाउंडेशन डे है उसका हमने दिया हुआ है अपना मकाम पैदा, और ये है कि हर साल हम यही कहते हैं कि कोई ना कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर जो इनकरेज करे, जो पॉजिटिविटी लाए, जो फ्यूचर के बारे में बात करें, ताकि बच्चों को या तलबा और तालिबात को आगे की जिंदगी के लिए वो तैयारी कर सकें। और यही है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर तुझे फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। ये है बात कि जिससे हमको हमारे अपने जो फलसफा है, हमारे अपने जो तालीमात है, हमारे जो अपने जो तरबियत है, इससे हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यही वो चीज़ है कि जो हमें तालीम देती है, और हमारे जो सरपरस्तों ने, हमारे वालिदैन ने, और ख़ासकर हमारे फाउंडर्स जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था, आज तक हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के भी हमारे एक्टिविटीज बदल रहे हैं। ये the secret of success is believing in power of potential, sincerity of purpose and courage of conviction. So if you have that, if you have a self-confidence, if you are doing hard work, if you are having very enthusiastic enthusiasm and bold action, then you have a positivity, you have positive attitude, you also have, you think that you can do, and if I can do, everybody can do. इससे ऊपर ये होता है कि you should also have faith in Almighty, whether you say ईश्वर, Allah, God, whatever is that, there is some supreme authority. तो इंसान ने अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको जिस जैसा वक्त है, जैसे उसकी पोजीशन है, अगर उस्ताद है, अगर वो तलबा है, अगर वो ट्रस्टी है, अगर कोई इसके क्लर्क है, तो हमने अपनी अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बरूए कार लाना चाहिए। और दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को हम कैसे फैज़ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए इंसानियत का हमको दर्स सीखना पड़ेगा। और यही बात कह रहे थे सिद्दीकी साहब, मुझे लगता है कि आपके स्पीच से आपने कल्ब को गरमा दिया और रूह को तड़पा दिया है बच्चों के। और मुझे लगता है और मुझे यकीन है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स और जितने बच्चे सुन रहे हैं, जो सामीन हैं, ये सोचें कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो देयर इज स्काई इज अ लिमिट। और हर फील्ड में आप काम कर सकते हैं, हर फील्ड में आप सुरखरो हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, जो भी फील्ड में आप कर सकते हैं। और यही बात है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कम न थे कर दो बयां। तो ये अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, या तमाम जो फलसफियाना शायरी है, हमारे सूफिया कराम की जो तालीमात है, और ख़ासकर हज़रत की और कुरान और हदीस की जो तालीम है, वो यही है कि इंसानियत का पैगाम देती है, वो तौहीद, मसावत, अदल का और हमदर्दी का पैगाम देती है। और ये तमाम चीज़ें, ये औसाफ अगर हम में आ जाए तो हम फिर सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शिजात का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो सवाल ये है कि वो तमाम चीज़ें अगर हम आज हमारे इसमें आ जाती है, तो यही वो औसाफ है, यही वो हमारे क्वालिटीज़ हैं जिससे हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ जिसको हम कह सकते हैं, और यही वो तरीका है। तो मैं समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं फिर एक मरतबा सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा दावतनामा कबूल किया और बहुत अच्छी स्पीच, बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच आपने दी। इंशाल्लाह अगली मरतबा आप आएंगे तो पूना में हम आपको हमारी मेहमान नवाजी बता सकेंगे इंशाल्लाह। कोई
यानी आपको अब सही से हम रिसीव कर सकेंगे और आजम कैंपस आप देख सकेंगे। आजम कैंपस के बारे में, इनामदार साहब के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मेहनत की और बहुत हमारी नीयत हमारी साफ रही है, लेकिन अल्लाह ने बरकत दी, तो क्रेडिट वी कैन नॉट टेक, ऑफ कोर्स इट इज ऑल, यानी ही अल्लाह ये सब करवाने वाला है, और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हम तालीम के मैदान में हम बहुत कुछ कर पाए और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ करने का इरादा है। शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरे प्रेसिडेंशियल स्पीच के साथ ही मैं समझती हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है, हमने टाइम लिया था गूगल मीट पर, तो वो भी खत्म हो रहा है। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया। मैं आज के मेहमान खुसरी मोहतरम समीर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद हमारी दावत को लब्बैक कहा और हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। बेहद शुक्रिया सर। मैं दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की सदर आबदा मैडम की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करके हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। तमाम इस इदारे के तमाम मेंबरान का शुक्रिया, सामाईन और नाजरीन का शुक्रिया जिनकी शिरकत थी इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़ामिन बना। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।